नमस्ते रवि जी। आशा है हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। नमस्कार। हमारी आवाज़ शायद आप तक पहुंच रही है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। म्यूट किया। हाँ, अब आप अब आ रही है आवाज़। सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। तो पहले तो भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं। रागादिरोगान सततानुसक्तान अशेषकाय प्रस्तुतान शेतान औत्सुक्य मोहारतिजान जंगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। अजय आ एनसीवा नाड़ी परीक्षा રિવિઝન કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત। આ લોકડાઉનમાં મેં એમ ધાર્યું કે જે નાડી પરીક્ષાનું જ્ઞાન છે એ આપણે જેમને આપેલું છે એમને પણ અપાય, અને આ રિવિઝન આપવા માટે મને જે 4 ભાષાઓ સરખી રીતે આવડે છે એ 4 ભાષાઓમાં જુદો જુદો પ્રયાસ મેં કરવાનું નિશ્ચિત કર્યું, અને આ કડીમાં આજનો આ છેલ્લો કાર્યક્રમ છે, જેમાં આપણે ગુજરાતીમાં તમારા સાથે વિમર્શ કરીશું। આમાં આપણા સાથે જોડાઈ ગયા છે આણંદના પ્રખ્યાત યોગ ચિકિત્સક, યોગપેથીના સર્જક આવા રવિચંદનભાઈ, આર્ય રવિચંદનભાઈ, અને એ આપના સાથે નાડી પરીક્ષા જે બધા સાથે એ પણ ભણ્યા, તો એમના અનુભવ એ આપણા બધા સાથે શેર કરશે। એમાં ખાસ કરીને એ હિન્દીમાં વાત કરવાના છે, તો આપણે એને સાંભળશું। નાડી પરીક્ષામાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે છે એનો પહેલાં આપણે એક રિકેપ કરીએ કે નાડી પરીક્ષા કરવી કેવી રીતે। આપણા સૌને નાડી પરીક્ષા તો આવડે છે જ, ફક્ત એક ફાસ્ટ રિકેપ આપણે કરીએ, અને આ રિકેપમાં નાડી પરીક્ષાનું સ્થાન, નાડી પરીક્ષામાં સૌથી અગત્યની વસ્તુ જે કોઈ હોય એ સ્થાનનું નિર્ધારણ। નાડીનું સ્થાનનું નિર્ધારણ જે કરી શકે તે સમજી લો એને નાડી પરીક્ષા આવડી ગઈ। નાડી પરીક્ષામાં જે સ્થાનને પકડી શકે એમને જ નાડી પરીક્ષા આવડે, ના તો પછી તમે આંગળી ક્યાંક એમ તેમ રાખો તો તમારે નાડી પરીક્ષા અચૂક થવાની નથી। તો સૌથી પહેલાં આંગળીના પાછળથી, અંગૂઠાના પાછળથી લઈને આ બોની પ્રોમિનન્સ સુધી આવવાનું, અને પછી થોડો અંદરની બાજુમાં જઈને આપણે જે ગઢ્ઢાલાયક વસ્તુ મળે છે ત્યાં પલ્સેશન મળશે, ત્યાં આંગળી રાખવાની તર્જની, એના બાજુમાં મધ્યમાં, એના બાજુમાં અનામિકા। આ જે વસ્તુ છે એમાં એક જ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે ત્રણેય આંગળી એક જ લેવલ પર હોવું જોઈએ। આ ઇમિડિયેટ એક્સપ્રેશન છે, એમાં આપણે જોઈશું કે નાડી પ્રિકિંગ છે, સોફ્ટ છે, રેગ્યુલર છે, ઇરેગ્યુલર છે, ફૂલ છે, એમ્પ્ટી છે, વાર્મ છે, નોટ વાર્મ છે। એના પછી કયા આંગળીના નીચે સ્પર્શ લાગે છે અને એની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે। ઇન્ટેન્સિટી આપણે ગણીએ, 0 એટલે નો પલ્સેશનથી મેક્સિમમ પલ્સેશન 3+, એના વચની જે પણ લાગતી હોય એનું નિર્ધારણ કરવાનું। એના પછી ધીમેથી આંગળી ઉપર ઉચકવાની અને મિનિમમ પ્રેશર સાથે આપણે નાડી જોવાનો પ્રયાસ કરવાનો। જ્યારે આપણે મિનિમમ પ્રેશર સાથે નાડી જોઈએ ત્યારે આપણે એ સુપરફિશિયલ એક્સપ્રેશન કહેવાય। એમાં આપણે કયા આંગળીના નીચે એની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી અને ગતિ કેટલી, ગતિ કઈ છે એનો
જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એના માટે એક અમે નવું લો બનાવ્યું છે. તો આ રિવિઝનમાં હું સૌ સાથે આ લોને તમારા સાથે સાझो કરવાનો વિચાર રાખું છું. ધીસ ઇઝ ધ લો. તમે અંગૂઠાની ઉપરની તરફ, તર્જનીની સામેની તરફ અને મધ્યમાને સાઈડની તરફમાં ફોલ્ડ કરો તો એ લો તમને બતાવે છે કે જે આડી ગતિ લાગતી હોય નાડીમાં તો એ સર્પની ગતિ છે. આ આડી ગતિ બેઓ સાઈડમાં લાગી શકે. તો આડી લાગે તો આ સર્પગતિ છે, સીધી લાગે તો હંસગતિ છે, અને ઉપર જવા વાળી નાડી લાગે તો એ મંડૂક ગતિ છે. તો આ સિમ્પલ તરીકાથી તમે ગતિને અવલોકિત કરી શકો છો. અને ગતિનું જ્ઞાન થઈ ગયું કે પછી આપણે નાડીને સૌથી વધારે દબાણ આપવાનું અને ડીપ લેવલમાં જવાનું. જ્યારે ડીપ લેવલમાં જાઓ તમે તો સૌથી વધારે દબાણ આપીએ ત્યારે નાડી બંધ થઈ જાય. અને જ્યારે નાડી બંધ થઈ ગઈ એના પછી એને ધીમેથી ઉચકવાનું અને ઉચકીને પછી જ્યારે પલ્સેશન શરૂ થાય ત્યાં જ રોકાવી જવાનું. એના પછી આપણે જોવાનું કયા આંગળીના નીચે અને ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે. આ આપણે પ્રકૃતિનું જ્ઞાન કરાવે. એના પછી આપણે જઈએ નાડી સુપરફિશિયલ ડીપ, સુપરફિશિયલ ડીપ, સુપરફિશિયલ ડીપ 4-5 વાર કરીએ તો આપણે નાડીનું થિકનેસનું જ્ઞાન થાય. એમાં પછી સુપરફિશિયલ પર જઈને એક આંગળીને પહેલાં ઇન્ડેક્સ, પછી મિડલ અને પછી રિંગ એક આંગળીને 1/3 લેવલ સુધી લઈ જવાનું. અને એમાં આપણે શબ્દોષાનું જ્ઞાન થાય. તો ઇન્ડેક્સમાં પહેલા ભાગે જે લાગે એ પ્રાણ, બીજે ભાગે જે લાગે તે ઉદાન, ત્રીજે ભાગે જે લાગે છે સમાન, ચોથે ભાગે લાગે છે અપાન. એમ જ પૂરા આંગળી પર લાગતું હોય ફેલાવેલું તો એને વ્યાન ગણાય. પછી મધ્યમાં પહેલી ભાગમાં જે લાગે એ છે પાચક, બીજા ભાગમાં લાગે તો રંજક, ત્રીજા ભાગમાં લાગે તો સાધક, ચોથા ભાગમાં લાગે તો આલેવચક અને ફેલાવેલું લાગે તો ભ્રાજક. રિંગ ફિંગરમાં પહેલા ભાગમાં જે લાગતું હોય તો એ ક્લેદક, બીજા ભાગમાં લાગતું હોય તો અવલંબક, ત્રીજા ભાગમાં લાગતું હોય તો બોધક, ચોથા ભાગમાં લાગતું હોય તો તર્પક અને ફેલાવેલું લાગે તો શ્લેષક કફ. અર્થાત હું આપણે ફાસ્ટ રિકેપ કરાવું છું. આ બધા આપણે સરખી રીતે એને શીખેલા છીએ. 6 દિવસ સુધી આ કાર્યક્રમ આપણે અટેન્ડ કરેલું છે કે ક્યારે વર્કશોપ અટેન્ડ કરેલું હોય તો આ 8 કલાકનો વર્કશોપમાં આપણે આ વસ્તુ ડિટેલમાં સાંભળેલી છે. આ ફક્ત એક રિકેપ છે. એના પછી ત્રણેય આંગળીઓ તમે સુપરફિશિયલ પર લઈ જવાના છીએ અને એના પછી એને 2/3 સુધી અંદર રાખવાના, ત્રણેય આંગળીઓ ભેગી. એમાં ઇન્ડેક્સમાં સ્પર્શ લાગે, મિડલમાં લાગે કે રિંગમાં લાગે એની ગણતરી કરવાની. ઇન્ડેક્સમાં લાગે તો અસ્થિ ધાતુ, મિડલમાં લાગે તો રક્ત ધાતુ, રિંગમાં લાગે તો રસ ધાતુ, મિડલ અને ઇન્ડેક્સમાં લાગે તો માંસ ધાતુ, મિડલ અને રિંગમાં લાગે તો મેદ ધાતુ, ત્રણેયમાં લાગે તો મજ્જા ધાતુ અને ઇન્ડેક્સ અને રિંગમાં લાગે તો શુક્ર ધાતુ. આટલો એક સિમ્પલ રિકેપ આપણે સમજી શકાય કે નાડી પરીક્ષાનો જે પૂરો પ્રક્રિયા છે આ પ્રક્રિયા આટલી જ છે. આમાં આપણે 13-14 જેટલા વસ્તુનો ધ્યાન કરીએ. એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ફક્ત નાડીનો લોકેશન અને દબાણનું લોકેશન છે. તમારી આંગળી ક્યાં રાખી તમે આ વસ્તુ તમે મગજમાં રાખો તો નાડી પરીક્ષા તમને સટીક જવાબ આપે. સટીક, કોઈ મિસ્ટેક વગરનું. અને એમાં તમે સરખી રીતે નિદાન કરી શકો છો. આ નિદાનનો ઉપયોગ ચિકિત્સામાં પણ થઈ શકે છે. મારો અનુભવ છે કે નાડી પરીક્ષા માત્ર, ધ્યાનમાં રાખો, નાડી પરીક્ષા માત્ર નિદાનનું સાધન નથી. આ હેતુલિંગ ઔષધ જ્ઞાનનું સાધન છે. આ તમને હેતુ જણાવે, લક્ષણ તો તમે નિદાનમાં જાણી શકો છો. એના સાથે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે ચિકિત્સા કાળનો જ્ઞાન પણ કરાવે. એટલે નાડી પરીક્ષા કરવી એને માત્ર નિદાન માટે તમે નહીં સમજો. એનો સમજાન જે છે તમારા ધ્યાનમાં આ આવવું જોઈએ કે આ હેતુલિંગ અને ઔષધ જ્ઞાન ત્રણેય માટે કામમાં આવે. આ ઇન્ટ્રોડક્શન થયા પછી હું રિક્વેસ્ટ કરીશ રવિભાઈને કે એ અમારા સાથે એમના બહુ મેં ગયા આ લોકડાઉનના સમયમાં ઘણી વાર રવિભાઈ એના પહેલા મારા પાસે બની ગયા હતા
અને લોકડાઉનના સમયમાં ઘણીવાર એમના પાસે જે રૂગ્ણો આવે છે, જે વિશેષ રૂગ્ણ આવે છે કાંઈ તો એને બાબતમાં મને રેગ્યુલર પૂછપરછ કરે છે અને જે અનુભવો એમને મળ્યા છે મને એમ લાગ્યું કે આ અનુભવ સૌ સાથે સાझा થવું જોઈએ, કેમ કે दे आर वेरी स्पेशल एक्सपीरियंसेस जिनको जो ध्यान आया है नाड़ी परीक्षा करते वक्त ऐसी ऐसी चीजें मिली है कि वो चीजें एक चिकित्सक के लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये अब अपना अनुभव गुजराती में साझा नहीं कर सकते हैं, परंतु जिस भी भाषा में करेंगे उस भाषा में समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो मैं बिल्कुल विनती करता हूँ रवि भाई को कि वो नाड़ी परीक्षा के बारे में आए उनके अनुभव, उनका जो भी इसके बारे में मंतव्य है, उनको जैसे भी लगे वो बतावे और हम सब बहुत लालायित हैं उनको सुनने के लिए। रवि भाई प्लीज। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजय साहब से मेरा परिचय। यहाँ पर हमारे आनंद के पास में एक वड़ताल है, वहां पर एक हमारे झा साहब ने आयुर्वेद महाकुंभ किया था, तो उसमें सेकंड लेक्चर, समापन का लेक्चर मेरा था और उसके दूसरे या पहले दिन हमने संजय जी को सुना। तो लगा कि उनको सीखना है, अब नाड़ी को हमें उसमें लगाना है अपने चिकित्सा में। योग चिकित्सा में हम यहाँ पे आयुर्वेद, योग और सिद्धा को इंटीग्रेटेड रूप से पेशेंट के ऊपर वर्क करते हैं। तो एक नाड़ी पिताजी करते थे, कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पिताजी पढ़ते थे तो उनके साथ क्लिनिक पे बैठते थे, तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया तो था, लेकिन उसकी गहराई के बारे में उतना ज्यादा नहीं था। तो 10th क्लास का मैं एक आपको अपना वो बताता हूँ स्मरण कि 10th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो जो राना टेगरेना होता था, फ्रॉग होता था, तो उसको डाइसेक्शन करना होता था, उसको विच्छेदन करना होता था। तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम अलग निकालते थे, कभी इंटेस्टाइन को देखते थे, इन सारी चीजों का। तो अरोटा को पकड़ के उसका पल्सेशन कैसा होता है, ये तो मुझे रियल अनुभव था। मेरी फिंगर इतनी सेंसिटिव तो थी, जब हम 10th क्लास में कभी राना टिग्रीना को ऐसे पकड़ते थे, उसको डाइसेक्शन करके उसका वास्कुलर सिस्टम निकाल के, तो नाड़ी यहाँ पर महसूस होती थी, पता चलता था कि कुछ होता है, लेकिन उसमें सर्प गति या श्वान गति या अदर जो गतियां थी उनका कोई मुझे उस तरीके से आइडिया नहीं था। फिर जब हम मेडिकल की तैयारी करने मेरठ गए, तो मेरठ में हमारी एक टीचर थी, बॉटनी पढ़ाती थी, डॉक्टर गीता। तो उस समय एक 11th 12th में भी पढ़ा था कि जो जाइलम और फ्लोएम का जो फ्लो होता है, उसमें शायद डिक्सन ने एक निडल डाल के वो सेंसेशन किया था कि वो एक ग्राफ वाइज उसका जो ऊपर सैप का ऊपर से नीचे तक ट्रांसपोर्टेशन है जल का और मिनरल्स का, वो ऊपर जाता है, तो वो देखा था। तो उस समय 11वीं क्लास में मैं अपने घर के सारे पौधों में जो सबसे छोटी सुई होती है ना, सिलने वाली, तुरपाई वाली, तो वो तुरपाई वाली सुई डाल के उस सुई को पकड़ के, वो मेरे हाथ की पल्सेशन ही महसूस होती होगी, लेकिन मैं उसे करता था। तो जब संजय जी वहां लेक्चर दे रहे थे, तो वो सारा का सारा 10th क्लास का वो पैट्री डिश, उसमें से वो काट के निकालना, फिर उसको शैतानी में उस मेंढक के सर्कुलेटरी सिस्टम में सिरा का वो देखना कैसा फ्लो होता है, आर्टरी का देखना कैसा फ्लो होता है। फिर 11th क्लास में अपने घर के सारे जो छोटे छोटे प्लांट थे उनमें एक सुई डालना और सुई को पकड़ पकड़ के देखना कि क्या होता है, वो पता चले। तो ऐसा मेरा स्वभाव था, ऐसा मैं उसको देखा मैंने। तो यहाँ पर संजय जी ने मुझे एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि कोई चोट कर देता है आपकी अंतरात्मा पे, क्योंकि उनका पहला वो था कि जब वैद्य ऐसे नाड़ी करता है तो क्या देखता है, पहला क्वेश्चन था। अब पिताजी तो जब मैं यंग था, 23 साल का था, तभी एक्सपायर हो गए थे, तो पिताजी से सीखने का मौका नहीं मिला। अब मुझे लगा कि उन्होंने करीब, उनका 1 सवा घंटे का लेक्चर था,
नाड़ी तरंगनी इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको उन्होंने उसके साथ जोड़ा। तो फिर मुझे लगा कि मैं पहले नाड़ी तरंगनी को परचेज कर लेता हूँ। तो हमने अपनी कंपनी आर्या इंडिया में नाड़ी तरंगनी खरीद ली 3 दिन के बाद। खरीदने के बाद फिर उस पे धीरे-धीरे हमने उंगली लगा के सीखना शुरू किया अपने आप से ही। कोई गाइडलाइन नहीं थी, जो थोड़ा बहुत ज्ञान था इधर-उधर से, उससे ही सीखना शुरू किया। मैं इधर-उधर से इसलिए कहता हूँ कि जब तक वो कंठस्थ नहीं होता, आत्मस्थ नहीं होता, तब तक मैं उसे मेरा ज्ञान है ऐसा नहीं मानता। तब तक मैं लर्निंग के प्रोसीजर में चलता रहता हूँ। तो लॉकडाउन से पहले की बरसात में हमें संजय जी ने मौका दिया कि आप आइए मुंबई और वर्कशॉप अटेंड करिए। तो वहां से मेरा नाड़ी के साथ एकदम गहन रिश्ता हो गया और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको अपनी नाड़ी दिन में कम से कम 10 से 15 बार देखनी है। तो जब मैं सुबह 4:30 बजे उठता, तब नाड़ी देखता, फिर उसके बाद नाड़ी देखता, तो ऐसे करके वो डाटा लगातार माइंड में आने लगे। लेकिन वो जो संजय जी का फंडा था कि यहाँ को 4 लाइन में डिवाइड कर लीजिए, 4 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, वो अभी अंतः आत्मा में जाना बाकी था, वो अभी नहीं आ रहा था। और संजय जी जब मैं उनसे डिस्कशन करता था किसी पेशेंट के लिए, तो वो मुझे हमेशा कहते थे, "आर्य, ये नाड़ी को एनालाइज करो, नाड़ी को देखो।" नहीं, तुम देखो, तुम देखो और मुझे बताओ। तो मैंने पहले जो मेरी जो प्रिस्क्रिप्शन फाइल थी, वो थोड़ा अपडेटेड नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने, अगर आप देखेंगे इस प्रिस्क्रिप्शन फाइल पे, तो जो संजय जी के सारे इंस्ट्रक्शन है, हमने यहां पर लिखे कि नाड़ी कैसी है, परसिस्ट कर रही है कि स्मूथ है, इंडेक्स पे प्लस माइनस, ये सारे के सारे हमने अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड में रखे सबसे पहले, और हमने इनको 10,000 छपवाया। तो अब ये वो जो मेरे यहाँ का प्रयोग था, बार बार अपने हाथ का जो प्रयोग था, अब वो पेशेंट की तरफ चला गया। अब वो पेशेंट को देखना है और यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है कुछ भी जो मेरे मेरे अनुसार आता है, फिर संजय जी से पूछना है, फिर वो उसमें बताते थे। धीरे धीरे ये मुझे समझ में आने लगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ी कठिनाई जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती है, जैसे मैं सोचता हूं कि मेरे सामने आई, तो वो सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि हम जब सुबह सवेरा, मेरे साथ क्या है, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी क्लास 5 बजे शुरू हो जाती है योगा की। तो मेरे पास योग सीखने के लिए, योग चिकित्सा के लिए करीब 100 से 150 लोग पर डे आते हैं। लॉकडाउन में तो अभी बहुत कम हो गए हैं, बीच में 5-6 महीने क्लास बंद रही। अदरवाइज तो 100-150 लोग आते हैं। जिस समय मैं संजय जी के यहाँ से बरसात में आया, उस समय मेरे पास पूरा एक मास था जिसको मैं देख सकता था। तो मैं 3 या 4 लोग देख लेता था कि आपको कल सुबह नाड़ी परीक्षा करनी है। तो पहले मैं नाड़ी परीक्षा, इंस्ट्रूमेंटल नाड़ी परीक्षा करता था अपने नाड़ी तरंगे के इंस्ट्रूमेंट से, और फिर अपने हाथ से रख के उसको जानने की कोशिश करता था कि क्या होता है, पहली लाइन में क्या होता है, दूसरे पोर्शन में क्या होता है, तीसरे पोर्शन में क्या होता है, चौथे पोर्शन में क्या होता है। फिर ऐसे करते-करते फिर मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट फिंगर है, सेकंड फिंगर है, थर्ड फिंगर है, या हम उसे तर्जनी, मध्यमा, अनामिका जो नाम देते हैं, तो तब हम जब उसको देखते हैं वहां से, तो अब मैंने अपने, जो मेरे पेशेंट आते थे, तो सुबह वो ध्यान में होते थे या प्राणायाम कर रहे होते थे या योग किया हुआ होता था। तो जो मेरे फैमिलियर थे उनमें से 25-30, क्योंकि हमने 2015 में मधुमेह मुक्त मानव करके एक अभियान चलाया था, तो उसमें 450 लोगों को डायबिटिक फ्री किया था हमने। तो वो लोग लगातार योगा प्रैक्टिस के लिए आते थे। तो उनकी नाड़ी हम परीक्षा करनी शुरू की हमने। बल्क मास था हमारे पास। नाड़ी परीक्षा करना, किस पे करना है, क्या करना है, ये नहीं। और ऐसा भी नहीं था जैसे चिकित्सकों के सामने चुनौती होती होगी कि भाई नाड़ी परीक्षा करना है और 5 मिनट के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखना है। मेरे साथ वो समस्या नहीं थी, क्योंकि सुबह में मेरे पास सारे लोग होते थे। तो मैंने धीरे-धीरे अपनी चेतना को यहाँ उँगलियों पे लाने के लिए, सबसे पहले तो वो मुझे मेंढक वाली बात मेरी उँगलियों पे लगती थी। फिर दूसरा मेरा वो पागलपन वाला प्रयोग कि एक छोटी-सी सुई को, तुरपाई वाली सुई को
प्लांट में डाल देना और उसको उंगली पकड़ के देखना कि क्या अंदर क्या ग्राफ चल रहा है। फिर वो मेरे नाड़ी तरंगनी का इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आ गया, तो उन्होंने बताया कि ये ऊपर की तरफ जहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, ये ज्यादा देते हैं प्रयोग। फिर संजय जी ने उसे एकदम से फोकस्ड कर दिया कि यही देखना है बस, यहीं पर आपको देखना है, यहीं पर आपको करना है। तो अभी करीब 2.5 या 3 महीने पहले हमने जब वहां से आए तो हमने कैंसर पेशेंट के ऊपर वो प्रयोग करना शुरू किया। तो संजय जी ने उसमें बताया कि इसमें ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो रियली में जब उन्होंने बताया और हमने नाड़ी में देखा और अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे नोट डाउन किया, तो वो कहीं भी साइड बाय साइड नहीं जाता था, एकदम से पिन पॉइंट पे जाता था, एकदम से पिन पॉइंट पे। एक और अपना अनुभव बताता हूं कि हम एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को देख रहे थे। तो मॉर्निंग में हम सबको बुला लेते हैं नाड़ी परीक्षा के लिए। हम दिन में अपने किसी वैद्यराज को ऐसा नहीं कहते कि आप इन्हें मेडिसिन लिखिए। हमारे यहाँ पे फिक्स है कि आप 5 बजे से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में आना है। नाड़ी परीक्षा मॉर्निंग में होगी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल नाड़ी परीक्षा होगी और फिर आपको फिर 12 दिन के बाद फिर 24, फिर 36, फिर 48, ऐसे करके हमारा यहाँ पर एक सिस्टम हमने करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो अब हमारे वैद्यराज देखते थे, तो नाड़ी परीक्षा में जब हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले की नाड़ी देखी, तो जैसे डिस्कवरी चैनल पे कोई अजगर कुछ खा लेता है या सांप जो है वो कुछ चूहा खा लेता है या कुछ खा लेता है, तो उसकी गति को चलते हुए दिखाते हैं। तो वो गति उस समय जिस समय मैंने पेशेंट को देखा था संग्रहणी के, उस समय वो गति का पता चलता था कि कुछ हो रहा है, लेकिन माइंड जो है उतना डाटा उसके पास नहीं था, तो वो उसके साथ टैली नहीं कर पाता था कि ये किस तरीके से इधर ही जाना है, संग्रहणी के पास ही जाना है। तो डॉक्टर साहब से मैं अभी एक मित्तलवाल रिगुलेशन के पेशेंट के लिए डिस्कशन कर रहा था, सुबह सवेरे वो मेरे पास आया था कि हमें उसे कौन सा प्राणायाम कराना है, कौन सा योग कराना है, क्या चिकित्सा से उसे लाभ होगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने जब वो बताया कि इसमें नाड़ी की गति इस तरह से जाएगी, यहाँ से इस तरीके से जाएगी, यहाँ से इस तरीके से जाएगी, तो वो पूरा का पूरा जब हमने उसको 10 मैं बहुत एक्साइट था कि ऐसा पेशेंट मुझे देखने को मिल रहा है नाड़ी परीक्षा के लिए और ऐसा गुरु मुझे मिला है कि जो मुझे बता देता है कि इसमें इस तरीके से मार्क करना है, अपनी उँगलियों के नीचे ऐसे मार्क करना है। तो मैंने उसको देखा, वो एकदम अक्षर सत्य था, एकदम से सत्य था। फिर संजय जी ने मुझे बताया था कि बीच-बीच में मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, कभी भी फ़ोन कर लेता हूँ उन्हें और मेरा सौभाग्य है कि वो कभी मेरे फ़ोन पे ऐसा नहीं कहते। अगर वो बिज़ी होते हैं तो बोल देते हैं कि मैं उस समय कॉल करूँगा और ये भी मेरा सौभाग्य है कि वो सामने से भी कॉल कर लेते हैं। तो एक गर्भिणी स्त्री का हमें पता नहीं था, वो यूएस से आई थी एक लेडीज़ और अचानक ही वो आके बैठ गई। तो कभी मुझे संजय जी ने बताया था कि जब हम नाड़ी देखते हैं किसी गर्भिणी स्त्री की, तो जैसे गंगा का प्रभाव में अचानक ही गंगा का प्रवाह हो रहा है, अचानक ही एक डॉल्फिन उभर के ऐसे अंदर जाती है। अचानक ही कोई समुद्र एकदम बहुत ज़्यादा वेवी नहीं है, शांत है। अचानक ही मछली ऐसे उठेगी और ऐसे चली जाएगी। तो ये तो मुझे पता था कि भाई ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना इस तरह की लेयर होती है। लेकिन नाड़ी में वो कैसे वो करती है? तो जब मैंने उनको सुन रखा था उससे पहले और अचानक ही वो यूएस से एक पेशेंट आई थी 2-3 दिन पहले और मैंने उनको नाड़ी देखी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं, नाड़ी आपकी ऐसा बताती है। तो वो तो एकदम शॉक्ड हो गए। गुरुजी मैं 4 दिन पहले वहाँ से आई हूँ यूएस से। मैंने कहा नहीं, नाड़ी आपकी बताती है आप प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ हमारे आनंद में एक्स-रे हाउस करके एशिया का सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट रखने वाला एक डायग्नोस्टिक सेंटर है एलोपैथ का। वो डॉक्टर रितेश प्रजापति मेरे अच्छे मित्र हैं। तो मैंने रितेश भाई को कहा कि अभी ये अपने हस्बैंड जो उसका मासिक का था, तो शायद 2 वीक हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने नाड़ी में ऐसा देखा है कि ये स्त्री प्रेग्नेंट है। तो क्या आप मेरी क्या मदद करेंगे? सोनोग्राफी पे वो प्रूव हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, अभी वो सोनोग्राफी में नहीं आएगा, अभी आपको टेस्ट में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डॉक्टर दीपेन ठक्कर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। यहाँ से वो मेरी पेशेंट यूएस की पेशेंट ये देखने के लिए
कि आयुर्वेद में जो ये बता रहे हैं गुरुजी, तो क्या वो सत्य है? तो वो यहाँ से दीपेन ठक्कर के यहाँ गई। दीपेन ठक्कर ने उनका वो जो किट का टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आया, और फिर उसके बाद जो ब्लड सैंपल का टेस्ट हुआ तो उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी पॉजिटिव आ गए। आज उनको बेटी है। तो जब हम उन सारी चीजों को सीखते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि इस तरह के लेक्चर, इस तरह की सारी चीजें हमें प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन हमें जीना नहीं सिखा सकती नाड़ी में। तो नाड़ी में जीना सीखने के लिए तो हमें इस तरीके के लगातार प्रयास मेरे पास वो डाटा बहुत ज्यादा है। मेरे पास सुबह में लोग आते हैं, मैं जिसकी भी नाड़ी पकड़ के, अभी मैंने कपालभाति कराया, उसके बाद नाड़ी पकड़ ली, देखा किधर जा रहा है। फिर अगर मान लिया मैंने उसको नाड़ी शोधन कराया, फिर मैंने उसकी नाड़ी पकड़ ली। अगर मैंने उसको ध्यान कराया, फिर मैंने उसकी नाड़ी पकड़ ली। तो मैं ऐसे देखता रहता हूं उसे, तो वो बहुत सारा डाटा माइंड में है। अभी वो कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए मैं उसे कितना, कौन सा प्लस आएगा, कौन सा माइनस आएगा, उस तरीके से मैं कॉन्फिडेंशियली नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे भी अपने करेक्शन के लिए संजय जी की हेल्प लेना होता है। कभी भी उन्हें फोन करके पूछना होता है कि इसमें क्या देखूं। लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि किसी भी नाड़ी वैद्य के सामने जब शुरू में कोई दिक्कत आती होगी, तो उसके लिए मैंने उसकी नाड़ी या उसकी उंगलियां उतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक प्रयोग करना शुरू किया। मैं विशेष तौर से उस प्रयोग को आपको बताने के लिए आया हूं कि सबसे पहले जब हम प्राणायाम या आसन कोई भी व्यक्ति करता है, तो हमने उसको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी है प्राण प्रहार। तो प्राण प्रहार में दूसरी कैटेगरी है, जब हम शांत लेट जाते हैं तो हम अपने अंगों का अवलोकन करते हैं। उस अंगों के अवलोकन को हम चिदाकाश धारणा कहते हैं, और चिदाकाश धारणा के बाद फिर मंत्रोच्चार आता है। ऐसे करके हमने एक पैकेज बनाया, पहले अपने आप खुद के ऊपर अप्लाई किया। तो अगर आप उसे करेंगे तो उससे आपकी जो सेंसिटिविटी है इन तीनों फिंगर्स की वो बढ़ जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो 4 पोर्शन में बांट कर उसको देखना है कि वो वास्तव में किस पोर्शन पे जाती है। वो हमें भ्राजक पित्त बताएगी, वो हमें अवलंबक पित्त बताएगी, या वो हमें कोई और कफ के उसमें लेके जाएगी, या अपान समान या कोई और वायु के बारे में बताएगी। तो वहां तक जाने के लिए तो मैंने क्या प्रयोग करना शुरू किया कि मैंने सबसे पहले भस्त्रिका, भस्त्रिका आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, बेलो ब्रीथिंग। तो हमने भस्त्रिका को 3 कैटेगरी में बांट दिया। तो सबसे पहले हमने फोर्सफुली भस्त्रिका करना शुरू किया। तो जब हम फोर्सफुली भस्त्रिका करते हैं तो उसमें डायफ्राइमिक मूवमेंट होता है, थोरेसिक मूवमेंट होता है, और कुछ जो है स्पाइनल मूवमेंट होता है। तो यहां से हमने उसको 9 मिनट का एक उसका प्रोटोकॉल सेट किया। तो पहले हमें फोर्सफुली ब्रीथ करना है 3 मिनट। 3 मिनट के बाद डायाफ्राम आपको सपोर्ट नहीं करेगा, थोरेसिक इंटरकोस्टल मसल्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, स्पाइनल आपकी थक जाएगी, अब वो मूवमेंट आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद जो आप उसमें फिर फोर्स देते हैं, तो जो लंग्स की पैराइटल मेम्ब्रेन होती है, फिर वो उसकी फोर्स आती है। आप थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप भस्त्रिका को लगातार करना चाहते हैं, करते रहना चाहते हैं, तो अब पैराइटल मेम्ब्रेन का फ्रिक्शन रहेगा, वो आपको समझ में आएगा। थर्ड में जब आप जाएंगे, अब वो जो माइक्रोट्यूबुलर लेवल है, जिसमें जो वहां पे बनने वाला म्यूकस है उससे वो बाहर निकालते रहते हैं, अब वो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने उसको भस्त्रिका को पहले अपने हार्ट बीट जो पल्सेशन है उसको सुनने के लिए ट्राई किया। तो मैं वहां से आ गया, और आने के बाद ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो मैंने 3 महीने वही प्रयोग किया कि सुबह में अपना भस्त्रिका करें, क्योंकि पेशेंट सुबह कोई नहीं आता था। 10 बजे से 2 बजे तक का क्लिनिक का टाइम था, उस समय आके बैठना था, तो सुबह मेरे पास पूरा टाइम था। तो मैंने उसको प्राण प्रहार करना शुरू किया। अब प्राण प्रहार के बाद शिथिरम, हमने अपनी बॉडी को लिटा दिया आराम से, और वो ले आए। तो तीसरे राउंड में जब वो सर्कुलेशन, सिर्फ माइक्रोट्यूबुलर सर्कुलेशन आप सुन लेते हैं,
आपकी जो आवाज है वो घर आवाज करके ऐसे जाती है। उसके बाद आपको हार्ट के चारों चैम्बर की आवाज सुनने में मिलने लगती है। अब हार्ट से मैंने उस चैम्बर की आवाज को अब ट्रैक करना शुरू किया अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, और फिर मैं अपने यहां तक पहुंचा। तो मुझे उसमें 15 या 17 दिन लगे, लेकिन मैं यहां तक आने लगा। जब मैं लेट जाता था चिदाकाश धारणा में, तो वो मेरी सेंसेशन वहां तक आ जाती थी। अब यहां से आने के बाद यही सेंसेशन मुझे मैच करनी है पेशेंट के साथ। तो मुझे पूरा आर्टियोल जो सिस्टम है, जो अरोटा सिस्टम है, जो माइक्रो सर्कुलेशन है, उसका पूरा आइडिया होना चाहिए। तो मैंने पहले वो अपना जो टोरोटोरा की एनाटॉमी की बुक है, उसमें से फिर वो पूरा जो वास्कुलर सिस्टम है, वो सारा का सारा डिटेल में पढ़ लिया। और डिटेल में पढ़ने के बाद उनका चैनलाइज देखा कि अगर ये मेरा पेशेंट यहाँ पर सियाटिका बताता है, गर्दसी बताता है, यहाँ पर पेन बताता है, इस पोर्शन में ही पेन बता रहा है, तो इस पोर्शन का जो पेन है, यहाँ पर जो कोई सप्लाई है, डायरेक्ट सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई है, उसका मुझे नाम याद होना चाहिए। शुरू में मुझे नाम याद नहीं रहते थे, तो मैं अपनी एनाटॉमी की बुक निकाल के उसको मार्क कर लेता था कि बस मुझे इतने पोर्शन में ये आर्टेरियल सप्लाई है, उनको मुझे मार्क करना है। अब मैं यहां पर रख के, यहां पर उंगली रख के, अब मैं जाता था उसके साथ, नाड़ी पे उंगली रख के, अब मैं उसके साथ वहीं तक जाता था, धीरे 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 धीरे। अब इस क्रम में मैंने उसको फिर 3 सेक्शन में बांट दिया कि जब मुझे ये वाली फिंगर को दबाना है यहां पे, सिर्फ इस फिंगर को दबाना है यहां पे, तो मुझे बोलना है पेशेंट को कि नाभि से नख तक रहना है आपको। आपको चेतना में नाभि से नख तक का ही ट्रैवलिंग करना है। पहले पेशेंट आ गया, उसको बैठाया हमने आराम से। बैठाने के बाद उसको कहा कि आप शांत बैठिए, आंखें बंद करिए, ओम का उच्चारण करिए, डीप ब्रीथ करिए। हमने उसको शांत किया। शांत करने के बाद अब हमें लोअर लिम्ब की तरफ जाना है, तो हमने उसे कहा कि आपको अपनी नाभि से नख तक देखना है आंखें बंद करके, जैसे आप शीशे में खुद को देख रहे हैं। और इधर अपनी एनाटॉमी और जो इसका सेंसेशन था, या जो वो पुराने यहाँ पर स्पर्श के मेरे इंप्रेशन थे कि भाई मेंढक के उसको हमने छुआ है, तो वो कैसे कैसे करता है, या प्लांट में एक वो निडल डाल के पागलपन किया है कि ये हिलती है, वो क्या करता होगा मुझे मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैंने वैसे किया है। अब उसके बाद हमें वो सारे के सारे डाटा मिलना शुरू हो गए, रियली में, रियली में मिलना शुरू हो गए। उसके बाद हमने जब ये फिंगर को दबाना शुरू किया 4 पोर्शन को, तो पेशेंट को कहा कि नाभि से और कंठकूप तक की यात्रा करनी है आपको। आपको जो भी होता है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपको डायबिटीज है, तो देखो यहाँ पर आपका स्वादुपिंड है, यहाँ पर रहना है। फिर स्वादुपिंड का आर्टरियल सप्लाई में हमें अपने आप को याद किया कि हाँ यहाँ ऐसे जाता होगा, क्योंकि ग्रंथ उतने ज्यादा नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए उसे वात पित्त कफ से जोड़ना शायद अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, लेकिन इतना पॉसिबल ना हो कि हम उसे पूरी तरीके से एकदम जोड़ दें। उसके बाद हमने इस फिंगर पे जब हम आए, तो हमने कंठकूप से, सॉरी, इस फिंगर पे जब हम आए, तो कंठकूप से शिखा तक की यात्रा उसको करानी शुरू की कि आप कंठकूप पे जाइए, फिर यहाँ 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 जाइए। लेकिन सत्य अगर मैं आज बताता हूं, यहाँ पे हमने करीब 1500 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को ठीक किया है, पूरी तरीके से ठीक, आयुर्वेद, सिद्धा, योगा में नासापान आदि सारी सम्मिलित चिकित्सा करके। हमारे पास पूरे डाटा है, 1500 के रिपोर्ट्स हमारे पास है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी। लेकिन जो नाड़ी संजय जी सिखाते हैं, वो मेरा लेक्चर शायद 4 या 5 घंटे का था। हम सुबह चले गए थे, फ्लाइट से शायद 10:30 बजे वो लेक्चर शुरू हुआ होगा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी, और शाम को हमारी रात की फ्लाइट थी वापसी की, तो वो शायद 6 या 7 बजे शाम तक चला था। बीच में थोड़ा सा 1 घंटे का गैप था। लेकिन उसमें जो संजय जी ने बताया और जो हमें सिखाया, वो कहीं से कहीं तक भी, कहीं से कहीं तक भी वो गलत साबित नहीं होता। तो मित्रों, मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। हाँ,
मैं उसमें जीवन देखता हूँ, जीना सीखना चाहता हूँ, उसको सीखता हूँ, उसको जीता हूँ। तो मेरा अनुभव यही है कि जो संजय जी का सिखाने का तरीका है, जो वो टेक्नोलॉजिकली उसमें एरोडायनामिक्स की बातें ऐड करते हैं, जो वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के साथ-साथ आयुर्वेद का पूरा ज्ञान का भंडार उसमें डाल देते हैं, वो अद्वितीय है। अभी तक मेरी यहाँ पे 18 साल की प्रैक्टिस है। तो म और आर्य विषयक विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक के आयुर्वेदिक कॉलेजों में शायद नाड़ी परीक्षा का विषय नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी हमने एडीआईटी कॉलेज के जो हमारे एक मित्र हैं, उनको बोला है कि हमारे एक गुरुजन हैं और वो अच्छी नाड़ी सिखाते हैं, तो कृपया आप उनका एक लेक्चर रखिए। तो बस मुझे अपने ये छोटे-छोटे शब्दों में ये छोटे-छोटे अनुभव ही आपको शेयर करना था। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आर्य रवि जी। एक સફળતમ ચિકિત્સકના પુત્ર તરીકે તમે જે જ્ઞાન મેળવ્યું હતું, જે જ્ઞાન તમને યોગાથી પ્રાપ્ત થયું, યોગાભ્યાસથી પ્રાપ્ત થયું, એમને તમે નાડી પરીક્ષા સાથે જે સંબંધ જોડાયું છે, આ અદ્ભુત છે. અને મને એમ લાગે છે કે આ વિષય જે છે એને એક स्वतंत्र रीते अलग से इसको सभी के सम्मुख नाड़ी परीक्षा के अभ्यास में जोड़ना चाहिए, क्योंकि यही बात हम अक्सर कहते हैं कि नाड़ी परीक्षा करना है तो आपको ध्यान के अभ्यास की जरूरत है, नंबर 1. नंबर 2, आपको रुग्ण को ये बताने की जरूरत है कि जहां उसे तकलीफ है वहां पर उसका ध्यान चला जाए, क्योंकि उसका कारण मात्र यही है कि नाड़ी परीक्षा में रुग्ण के आत्मा के साथ चिकित्सक के आत्मा का संवाद होता है, नाड़ी इस ब्रिज के द्वारा. तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से योग मात्रा से समझाया है, मैं आपका आभारी हूँ. नाड़ी परीक्षा में इस प्रकार के विचार करने वाले व्यक्तित्व की बहुत अधिक जरूरत है, और ऐसे व्यक्तित्व का जो अनुभव है वो अगर हम सब लोगों के साथ साझा होने लगे तो निश्चित है कि और भी जो योग शिक्षक है, योग चिकित्सक है, वो इन विधाओं का, जिसका वो अभ्यास पहले से कर चुके हैं, उस विधाओं को चिकित्सा पद्धति में अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे पुनः एक बार इस विषय में लंबे संवाद की अपेक्षा के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ. गुरुजी आपका हक है, आप हमेशा आज्ञा दीजिए. મિત્રો, આજે જે આપણે રવિભાઈને સાંભળ્યું, આમાં હૃદયની સાથે જે રક્તવાહિનીઓનો કનેક્શન છે, અને આ કનેક્શનમાં તમારે શરીરમાં દરેક અવયવ સાથેનો જો સંબંધ છે, આ સંબંધ કેવી રીતે ગોતવાનું, આ પ્રક્રિયાને એમને જેવી રીતે ઓળખ્યું છે, આ વાત એમને જણાવી. નાડી પરીક્ષાના જે 2-4 અનુભવ એમને કીધા છે, આ બહુ પ્રખ્યાત છે. જેવી રીતે કે જે પ્રેગ્નન્ટ નાડીનું ઉદાહરણ કીધું કે નદી ગંગામાં ડોલ્ફિન ફરે છે. જેને કોઈને ગંગા જોઈ હશે કાશીમાં જઈને, એમને ખબર હશે કે ગંગા આવી એકમાત્ર નદી છે જ્યાં ડોલ્ફિન ફરે છે, બાકી તો સમુદ્રમાં હોય છે. અને તમને એ નદીના પ્રવાહ સાથે એમનો પ્રવાહ મળે છે, અને રહેશે શ્યોર શોર્ટ સાઇન ઓફ પ્રેગ્નન્સી. તો તમે પ્રેગ્નન્ટ લેડીને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. બીજી વસ્તુ જે એમને આપણા સૌ સાથે જે શેર કરી, આ તો એમને વાત કરતા હતા કે VSDનો પેશન્ટ હોય તો એના નાડીમાં તમને શું ખબર પડે,
આ વાત વિકાર છે, કેમ કે ગતિનો ફેર છે એમાં. પણ આ વાત વિકાર, સામાન્ય વાત વિકાર, વાત જ હૃદય રોગનો અને વાત જ ગ્રહણીનો વાત વિકાર, એમાં શું ફેર હશે? આવું વિષય નીકળ્યું. તો જે સર્પગતિ સામાન્યમાં મળે, પણ સર્પનું એક કોબરા જેવું વિકાર મળતું હોય તો એ તમને VSD ની જાણ કરાવે. અને પેટ ભરેલા અજગર જેવી નાડી જ્યારે ચાલતી હોય, સ્થિરતા સાથે ચાલતી હોય, ત્યારે તમને આ ગ્રહણીનો અનુભવ કરાવે. આ નાના નાના ફેર છે, અને એ ફેર જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરો ત્યારે જ આવડે, એના સિવાય નહીં આવે. તમે એમ ધારો કે હું મારો રવિભાઈ બરો એકદમ સટીક રૂપમાં કીધું કે આ લેક્ચર માત્રથી નાડી પરીક્ષા નથી આવવાની. નાડી પરીક્ષા આવવી હોય, તમને એમનું માસ્ટર બનવું હોય, તો એનો અભ્યાસ કરવો પડે. ચરક પણ એ જ કહે છે, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम अभ्यासात प्राप्त दृष्टि. शास्त्र आपको दृष्टि नहीं देता है, शास्त्र सिर्फ प्रकाश देता है कि यहाँ है भाई देख लो. उसके लिए जो आवश्यक प्रकाश है આ શાસ્ત્રમાંથી મળે છે. પરંતુ જે જોવાનું છે એ આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે તમને અભ્યાસની જરૂરત છે. અને અભ્યાસ હોય છે ભાવાભ્યાસનમ અભ્યાસ શીલનમ સતત ક્રિયા. જે એમને સાર્થક કર્યું એ દિવસમાં પોતાની નાડી 15-20 વાર જોવાની શરૂઆત કરી. હું દરેક ક્લાસમાં આ જણાવું છું કે ભાઈ તમારી નાડી જોતા રહ્યો 3 મહિના સુધી, દિવસમાં 20, 30, 40 વાર. અને ફક્ત જોવો નહીં, એને લખો, કેમ કે જોઈને તમે ભૂલી જવાના છો. આપણે એમ યાદ નહીં હોય કે આપણે પરમ દિવસે શું ખાધેલું નાસ્તામાં, તો નાડી જોયેલી કેવી રીતે યાદ રહેવાની છે? 30 વાર જોવાની હોય તો યાદ રહે ખરી? ઇમ્પોસિબલ જેવી વસ્તુ છે. તો લખીને રાખો, નોટ્સ કરશો, ડાટા બનશે. ધારો તમે 1500 કોવિડ પેશન્ટનો ડાટા, કોઈ આયુર્વેદના સારા ડોક્ટર પાસે પણ ન હોય. આયુર્વેદમાં હોસ્પિટલમાં જે કોવિડ હોસ્પિટલ નથી ત્યાંય આટલો ડાટા નહીં મળે. આટલું ડાટા પ્રી અને પોસ્ટ રિપોર્ટ સાથે તમને જે મળતું હોય, તો માણસની લગન કેટલી છે એની ખબર પડે. આ લગન સાથે તમે નાડી પરીક્ષા કરો તો તમે પણ માસ્ટર બની શકો છો. નાડી પરીક્ષા શીખવાના માત્ર 4 ઉપાયો છે. પાછું ઉપાય નથી, ઉપાય 4 જ છે. નંબર 1, શાસ્ત્રૈશ્ચ, જે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે એના પ્રકાશમાં જો. સંપ્રદાયશ્ચ, જે તમે સંપ્રદાયમાં ભણવા મળે, જેવું આપણો સંપ્રદાય છે આ નાડી ગુરુ સંપ્રદાય. આ નાડી ગુરુ સંપ્રદાયમાં મને જે આવડે છે હું સૌને સંભળાવું છું. જે અમે જ્યારે પ્રેક્ટિકલમાં ક્લાસ લઈએ ત્યારે બતાવું પણ છું. હમણાં લોકડાઉનમાં જેમને રવિભાઈ કીધું કે આ બ્લેસિંગ ઇન ડિસગાઇઝ, કે આ બધા માટે સંકટ, પણ અમને શીખવા માટેનો અનુભવની જગ્યા મળી. અને મેં પણ ધારું છું, મને 30,000 વૈદ્યો સુધી પહોંચવામાં 28 વર્ષ લાગ્યા. અને ગયા લોકડાઉનના 1 વર્ષમાં હું 22,000થી વધુ લોકોને નાડી પરીક્ષા બનાવી શકું છું. અને આ તો મેં જ્યારે સાથે ડાયરેક્ટ લાઈવ વાત કરી એનો નંબર છે. પરંતુ એના સિવાયનો જે ફેસબુક કે યુટ્યુબ પર મને જોતા હોય છે, એમનો નંબર ગણવા જાઓ તો આ લાખોમાં જાય. તો ધીસ ઇઝ હાઉ લોકડાઉન હેલ્પ્ડ અસ. અને આ વસ્તુ જે આપણે નાડી પરીક્ષાની શીખી ગયા, શાસ્ત્રેશ્ચ સંપ્રદાયશ્ચ. ત્રીજી વસ્તુ સૌથી મહત્વની છે, સ્વાનુભવેશ્ચ. તમે જ્યારે નાડી ઉપર આંગળી રાખો અને તમારો જે અનુભવ થાય એ અનુભવને તમે ગોતી રાખો, લખી રાખો, અને એ અનુભવ તમને બતાવે છે, લાઈફ લોંગ તમારા સાથે રહેશે. અને જેમ રવિભાઈ બહુ સટીકલી કીધું કે જ્યાં સુધીમાં સાંભળેલું વિજ્ઞાન છે, જ્ઞાન ત્યારે જ્યારે મારા મગજમાં બેસે, એમના મગજમાં જ્યારે બેસે ત્યારું જ્ઞાન. એટલે there are two categories. One is a learned person and second is a wise person. A learned probably might have read multiple books, but he don't have the knowledge. And wise person has the innate knowledge, and that innate knowledge is ever important. So be wise. And last, Nijaischa,
These are only 4 methods to learn. Check તમારી નાડી, પોતાની નાડી દિવસમાં 20, 25, 30 વાર જો. ઉઠીને સવારથી સાંજ સુધીમાં, રાત્રે સુવો ત્યાં સુધીમાં કન્ટિન્યુઅસ જો, અને તમે જે કંઈ ખાધેલું હોય, પીધેલું હોય, કરેલું હોય એનું પરિણામ નાડીમાં શું મળે એનું જે તમે નોટિંગ રાખો, તો મને લાગે છે કે કોઈ નાડી પરીક્ષા દુનિયામાં આખરી નથી. નાડી પરીક્ષા આખરી નથી જ. સૌથી પહેલી વાત, નાડી પરીક્ષા જેટલું ઇઝી ડાયગ્નોસ્ટિક ટૂલ કોઈ નથી. એને આપની ભીખ જે છે આ અસંભવ બનાવે છે. તમે ડર કાઢી નાખો, નાડી પરીક્ષા તમારા માટે છે મોસ્ટ ઇઝી છે. સો જસ્ટ પ્રેક્ટિસ ઇટ. ઇફ યુ હેવ ક્વેશ્ચન્સ, આઈ એમ ધેર ટુ આન્સર. કંઈ પ્રશ્નો હોય તો પૂછી શકો, ન હોય તો આપણે અહીંયા વિરામ લેશું. थैंक यू रवि जी, आपने बहुमूल्य अनुभव हमारे साथ साझा किया। और शायद ये अनुभव, क्योंकि हम योगा का अभ्यास नहीं करते हैं, तो हमारे पास कभी नहीं आता भस्त्रिका का होने वाला परिणाम। आपने जो कहा सूक्ष्म नलिकाओं से, जैसे कि हमने प्राणाघात किया, डायफ्राम से मारा ऊपर, उसके बाद में लंग के कवरिंग से मारा, और अंदर में जो इंट्राट्यूबल मूवमेंट है उसको अनुभव किया, ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक योगाचार्य कर सकता है। पर उस अनुभव को अगर आपने साझा किया तो हमारे जैसे जो योग से उतना परिचित नहीं है, शायद हम लोग भी करेंगे। मैं जरूर चाहूँगा कि आप एक इसके बारे में एक अच्छा रिकॉर्ड लेक्चर हमारे साथ साझा करें जब भी आपके पास समय हो। और यही मैं हमारे नाड़ी गुरु चैनल की तरफ से आपको विनती कर सकता हूँ, और शायद ये मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस पे लंबे समय तक, जितना भी समय आप चाहे, इस पूरे प्रक्रिया को विस्तार से बतावे कि नाभि से लेकर नाड़ी तक का जो प्रवाह है वो किस तरीके से होगा। इसी बात के साथ आपसे धन्यवाद कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।